So the topic that we are going to take is the Union Executive of India. Union Executive consists of President, Vice President, the Prime Minister of India, Council of Ministers, and Attorney General. And Article 52 to 78 in Part 5 of the Constitution deal with the Union Executive. So the first of these is the first citizen of India or the constitutional head of India, our esteemed President. Article 52 of the Constitution provides that there shall be a president. इसका मतलब क्या है? That the post of president is considered so relevant that it can never be left vacant. Okay, there will always be somebody occupying the post of president. Then the president is the nominal head of the state. He's the nominal, titular, or constitutional head. He is a symbolic head of the state, and in other words, he's a de jure executive, because we have taken a parliamentary form of government. We do not have a presidential form of government. Okay, so despite being first citizen of India, his job is primarily ceremonial. ठीक है, the real power under our constitutional scheme rests with the Prime Minister and the Council of Ministers. Okay, so the key articles with respect to president: 52, 53, they deal with president and his executive power. Then 54 and 55 deal with election of the president. 56 has its term of office of the president. Then 58 deals with the qualifications which are required. Then oath and affirmation of the president, and 61 is impeachment. Now 72, pardoning power, is an important article. Then 123, again, ordinance making power of the president, a very relevant article for our exam perspective. सीधे क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत बार मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या फिर इंडिविजुअल आर्टिकल दे रखा है और आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, एंड यू कैन बी आस्क्ड वेदर दिस स्टेटमेंट मैचेस विद द आर्टिकल और नॉट. So the first thing, as I said, the head of the state and the first citizen of the country, इसका जो इलेक्शन है आर्टिकल 54 और 55 इससे डील करते हैं. एंड जो इलेक्शन प्रोसेस फॉर इलेक्टिंग एनी कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, दैट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. That is, the president is elected by an electoral college which consists of representatives of parliament, representatives of legislative assembly. इन दो से, ठीक है. अब who are these? The elected members of parliament as well as elected members of legislative assembly, and thirdly elected members of the legislative assembly of union territories of Delhi and union territory of Puducherry. ये तीन ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मिलकर हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, करते हैं. Then as far as the voting method is concerned, the voting method is with respect to proportional representation, and there is a use of single transferable vote, wherein the nominated members of both houses are not allowed to vote, nor any party symbols are allowed. Let's go into the process, of the election of the president. See, under Article 54, the president is supposed to be elected by an electoral college which consists of elected MPs, elected MLAs, MLAs of all states as well as of UT of Puducherry and Delhi. Then the election process consists of proportional representation. That is, the voting is through the method of proportional representation. देखिए, दो तरह के वोटिंग सिस्टम इंडिया में यूज़ होते हैं. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. MP MLAs की जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है, वेयर इन द कैंडिडेट हु हैज़ सिक्योर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट, ही इज़ डिक्लेयर्ड अ विनर. जहाँ पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन का सवाल आता है वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, वेयर इन अ पर्सन इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड अ विनर ही मस्ट रिसीव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, दैट इज 50% ऑफ द वोट्स प्लस 1 वोट. ओके, अब ये जो वोटिंग होती है इट्स थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि एवरी इलेक्टर इज गिवन अ बैलेट पेपर वेर इन द नेम्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर रिटन, एंड ही हैज़ टू मार्क हिज प्रेफरेंस कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा कैंडिडेट है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा कैंडिडेट है, एंड सो ऑन. देन फाइनली व्हेन द वोट्स आर काउंटेड, द पर्सन हु इज गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, he in case he secures an absolute majority, he is declared a winner. ओके, अब इसमें जो MLAs हैं, MLAs के वोट्स होते हैं, इनकी वोट की वैल्यू क्या होती है? सी, यू डिवाइड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट बाय द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, और अदर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000, एंड वो जो डिवीजन के बाद जो नंबर आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA ऑफ दैट स्टेट. ओके, नाउ जहाँ पे MPs का सवाल है, वैल्यू ऑफ देयर वोट व्हेन इट इज काउंटेड, व्हाट वी डू इज, जितने भी स्टेट्स हैं सबके MLAs के वोट्स की जो वैल्यू है वी एड इट अप, एंड वो जो टोटल नंबर आ रहा है वी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs
टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ एमपीज इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा, ठीक है। देन इलेक्शन प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। फर्दर दिस वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब है जो भी इलेक्टर्स हैं दे डू नॉट हैव दिस फ्रीडम टू इन एनी वे शोकेस दैट किस कैंडिडेट के लिए उन्हें वोट किया है। Fine. Then to win, as I said before, a candidate must secure a absolute majority of the valid votes. Okay. The next we have qualification term and impeachment of the president. देखिए क्वालिफिकेशन जहाँ तक प्रेसिडेंट की इलेक्शन की कंसर्न है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर आर्टिकल 58 ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज और एल्डर, देन ही शुड बी एलिजिबल फॉर बीइंग इलेक्टेड टू लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए वो। देन ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेदर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। ओके, देन besides the qualification there are certain conditions for the office of president. He should not be an MP or MLA. वो MP या MLA की पोस्ट पे सिटिंग MP या सिटिंग MLA नहीं होने चाहिए। इन केस वो होते हैं, सो द मोमेंट इन दैट केस द मोमेंट ही गेट्स इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट उसी मोमेंट पे वो हिज सीट एज MP और MLA स्टैंड्स वेकेटेड। ओके, देन एज ए प्रेसिडेंट उनको राष्ट्रपति भवन जो है उसका फ्री उपयोग करने का अधिकार है। देन ही इज एलिजिबल फॉर सर्टेन सैलरी एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस, एंड दीज सैलरी प्रिविलेजेस एटसेट्रा दे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक वो ऑफिस में है तब तक इन्हें डिमिनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन देयर इज ओथ, जो प्रेसिडेंट की ओथ है ये इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं, एंड his oath primarily involves an oath or affirmation to preserve, protect and defend the constitution of India. इनकी ऑफिस की टर्म जो है दैट इज 5 years, 5 साल अपने ऑफिस में रहते हैं, और until unless he vacates his office before he sits in his office for 5 years. In fact अगर किसी सर्कमस्टांस में ऐसा हो जाता है कि द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, सो द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू टू सिट ऑन हिज सीट टिल द न्यू प्रेसिडेंट उनका इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन he can be re-elected as many number of times. There is no limit on the number of times a person can be a president of India. Then उनके इलेक्शन से उनकी जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी के इलेक्शन इट मस्ट बी फिनिश्ड विद इन 6 months, मतलब जब भी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। देन एज फार एज द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसर्न्ड, उनका रिमूवल 3 तरह से हो सकता है, मतलब देयर कैन बी द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट, ही कैन रिजाइन, इफ ही रिजाइंस ही सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, and then he can be if a death happens or some other contingency happens to his body, in that case also the seat gets vacated. Okay, देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस में एक बार आपको बता दूं, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता क्या है कि फॉर इम्पीचिंग एनी प्रेसिडेंट एटलीस्ट 50 MPs मस्ट propose a resolution asking to impeach the president, and then it must be passed by at least 1/4 of the total number of MPs of that house, ठीक है। Once that resolution for impeachment has been passed by 1/4 total strength of the house, then the president is given a notice for impeachment. अब इस नोटिस में he'll be given the grounds, and that ground must be violation of the constitution. इस एक ग्राउंड पे ही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देन द हाउस विच प्रेफर्ड द चार्ज और विच सेंट द नोटिस, दे वुड गो विद द प्रोसीडिंग्स एंड दे वुड प्रेफर द चार्ज। अब जो हाउस है इट मस्ट पास दैट चार्ज बाय 2/3 of the total majority of the house. If the house passes it by the said majority, then the resolution goes to the next house. The next house is called the investigating house. अब investigating house में the president has the right to present himself and defend himself with respect to the impeachment proceedings. And if after the investigation the second house also finds the ground for impeachment valid, it can also pass that resolution by 2/3 of the total majority of the house. And once the second house also passes, the president from the date of passing of that address for removal, the president stands impeached. Okay, then we look at the powers of the president.
देखिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है. ही हैज़ 6 टाइप ऑफ पावर्स प्राइमरली. ही हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ही हैज़ लेजिस्लेटिव पावर्स, ही हैज़ जुडिशियल पावर्स, ही हैज़ इमरजेंसी पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स एंड मिलिट्री पावर्स. ये जो शॉर्ट फॉर्म में आपको ये स्लाइड दी हुई है, यू कैन यूज़ दिस स्लाइड फॉर अ क्विक रिविजन. जब भी आप पढ़ेंगे ये स्लाइड, आई वुड बी प्रोवाइडिंग इट एट द एंड ऑफ माई लेक्चर इन माई चैनल. और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस स्लाइड को PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं. और ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिविजन के लिए. ठीक है, लेट्स लुक एट दीज पावर्स इन डिटेल फर्स्ट. ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट हमारे. ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. फिर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. देन ही कैन मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस. ठीक है ना. देन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. देन स्टेट लेवल पे गवर्नर जो है उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. Then there are certain constitutional posts that are filled by that are appointed by the president. हमारे जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. देन CAG का अपॉइंटमेंट किया जाता है. इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. UPSC के चेयरमैन मेंबर्स हो गए एंड अटॉर्नी जनरल हो गए एंड सो ऑन. देन यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं. एज वेल एज ही एंश्योर्स स्मूथ रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स. देन एज एन एग्जीक्यूटिव ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑल्सो ऑफ द डिफेंस फोर्सेज. then he has this power to seek any information from prime minister with respect to administration of the union. कोई भी वो बिल लाने वाले हैं उसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं. वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई मैटर या फिर कोई मैसेज दे सकते हैं कि भाई यू शुड कंसिडर दिस मैटर. ओके, देन वी हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स. ये लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत रेलिवेंट है, यहाँ से कई बार सीधा क्वेश्चन उठता है, सो बी वेरी फोकस्ड हियर. ओके, ही समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के सेशन को समन और प्रोरोग प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है. देन पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर इलेक्शन, दैट सेशन एज वेल एज every first session of parliament every year, that is addressed by the president. ठीक है ना. इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा और उसके बाद अगले 5 सालों तक साल का जो पहला सेशन होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं. देन ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा. अगर किसी उनको लगता है कि किसी की जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा. या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करती है लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, ही कैन अगेन डिसॉल्व द लोकसभा. ठीक है. ही हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 members to Rajya Sabha, or people who are luminaries in the field of art, literature, science, social service, etc. उनको nominate करते हैं. Then earlier he used to nominate 2 Anglo-Indians into Lok Sabha, but this article 331 has now been repealed. Okay. पार्लियामेंट में फाइनेंस कमीशन हो गया, CAG हो गया, UPSC एट्सेट्रा, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं दे आर लेड डाउन बाय द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. देन जो बिल्स हैं पार्लियामेंट में पास होते हैं ये प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ही एक्ट बन सकते हैं. ठीक है ना. सो ही प्रोवाइड्स असेंट टू द बिल्स. देन अगर उन्हें कोई बिल लग रहा है इट शुड बी सेंट अगेन टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन. सो दैट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ही कैन सेंड दैट बिल टू द पार्लियामेंट फॉर अ रिकंसिडरेशन. देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है. अंडर आर्टिकल 123 he has a power to promulgate ordinance when either or both houses are not in function. Then another very important legislative power is power to veto. Okay, veto literally means to forbid. तो ये जो वीटो मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग असेंट टू द बिल्स. ओके, वीटो जो होती है प्राइमरली 4 तरह की होती है, बट हमारे रिस्पेक्ट में 3 आर इंपॉर्टेंट. देर इज एब्सोल्यूट वीटो, देर इज क्वालिफाइड वीटो, देर इज सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो होती है उसमें जो है, सी वेन एवर एनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, उसमें प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू गिव हिज असेंट और विदहेल्ड हिज असेंट. So when the president withholds his assent, it's called absolute veto, and in that scenario bill gets rejected outrightly. Then जब president किसी बिल को reconsideration के लिए भेजते हैं, that is called suspensive veto. और जब कोई रिकन्सिडरेशन वाला बिल प्रेसिडेंट के द्वारा कोई रिकन्सिडरेशन के लिए बिल भेजा गया है एंड दैट इज पास्ड अगेन बाय हायर मेजॉरिटी,
और अगेन इट इज ब्रॉट बिफोर द प्रेसिडेंट, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड वीटो. ये यूएस में अवेलेबल है, इंडिया के रिस्पेक्ट में अवेलेबल नहीं है. देन फाइनली देर इज पॉकेट वीटो वेर इन देर इज नो टाइम लिमिट टू एक्ट. इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. सी एब्सोल्यूट वीटो, द प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स द बिल आउटराइटली. He declares that he withholds his assent to the bill, and in that circumstance the bills falls flat on ground and it fails to become a law. अब जैसे एक पेप्सू था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन का बिल, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ही यूज्ड हिज एब्सोल्यूट वीटो विद रिस्पेक्ट टू दैट बिल एंड इट डिड नॉट बिकम अ लॉ. Then suspensive veto, as I told before, the president returns the bill for reconsideration of the house, and if after reconsideration the house sends the bill again, he must pass that bill. He has no choice anymore. He can only send it for reconsideration once. ठीक है. देन देर इज पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो लिटरली मीनिंग इसका मतलब क्या है कि भाई जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बिल को अपने पॉकेट में रख लिया और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. सो व्हाट ही सी डूइंग इज ही विदहोल्ड्स अ बिल विदाउट टेकिंग एनी एक्शन. सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट. तो इफ ही डज नॉट टेक एनी एक्शन, द बिल जस्ट स्टेज ऑन द टेबल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. देन देर इज थिंग कॉल्ड लाइन आइटम वीटो. इंडिया में ये लाइन आइटम वीटो जो है ये नहीं है. बेसिकली यूएस की ये टर्म है जिसमें होता है कि प्रेसिडेंट कैन सेलेक्टिवली पास अ बिल. कुछ आइटम्स को पास कर दें, कुछ को पास ना करें. दिस प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल अगेन इन केस ऑफ इंडिया. ओके. देन अनदर इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये एक लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है विच इज अवेलेबल टू इट when the houses, either or both houses of the parliament are not in function. ठीक है ना, दोनों हाउस सेशन में नहीं है तब प्रेसिडेंट इस पावर को यूज करते हैं. ठीक है. ही कैन मेक ऑर्डिनेंसेज ऑन द सेम सब्जेक्ट्स फॉर विच द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉ. यूनियन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं. ठीक है. देन द ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड इन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो या फिर एक सिंगल हाउस सेशन में हो. ठीक है. देन वंस एन ऑर्डिनेंस इज पास, इट हैज़ द सेम फोर्स एज दैट ऑफ अ पार्लियामेंट्री लॉ, बट इट्स लाइफ इज ओनली अंटिल द पार्लियामेंट सिट्स इन सेशन अगेन. देखिए हाईएस्ट जो है ये 7.5 months के लिए इन फोर्स रह सकता है. होता क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 sessions ऑफ द पार्लियामेंट, एंड an ordinance must be passed within 6 weeks of parliament sitting in its sessions. ठीक है ना. तो द मैक्सिमम टाइम फॉर इट विच इट कैन स्टे इन फोर्स इज 7.5 months. ठीक है. देन जो ऑर्डिनेंस है मनी बिल्स पे नहीं लाया जा सकता है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट रिमेंबर. 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद से मनी बिल के ऊपर कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता. इट मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ओके. देन वी हैव जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए जुडिशियल पावर जो है उसमें फर्स्ट ही अपॉइंट्स जजेस, चीफ जस्टिस हो गए या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. देन ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143. ठीक है. एंड दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, इट इज मेनली एन एडवाइजरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देन ही हैज़ द पावर टू गिव पार्डन्स, क्या कहते हैं, ही कैन गिव पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और what do you say, remission of the of any punishment. Then similarly he can suspend any sentence, or he can commute any sentence, or he can remit any sentence. And all these powers are available with respect to a situation wherein the person on whom these powers are being exercised, he is getting punished under a union law, or he is person punished under court martial, or he is a person who has been given a death penalty. इन 3 grounds पे ही इनकी जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है एक्सरसाइज की जा सकती है अंडर आर्टिकल 72. ठीक है. देन देर इज डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए जो भी एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं या फिर हमारे कॉन्सुलर ऑफिसर्स होते हैं हाईएस्ट लेवल के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के ऑफिस के द्वारा किया जाता है. देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो हैं उसमें प्रेसिडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. देन जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनको रिसीव करने का काम है प्रेसिडेंट का. बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज को ही प्रोवाइड्स देम सेरेमोनियल वेलकम. देन जितनी ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स हैं दे आर साइंड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट.
okay, and so on. Then we have the military powers. देखिए, he is the first citizen of India and he is also the supreme commander of the armed forces. जितने भी तीनों फोर्सेस के हेड्स होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट के ऑफिस से होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. देन फाइनली कोई वॉर या पीस वगैरह है, ये भी डिक्लेयर जो है प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट. ओके, फर्स्ट बिफोर दैट क्विकली आपको एक दो चीज़ याद रखनी है. फैक्चुअल कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं. श्री राजेंद्र प्रसाद इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं. नोबडी एल्स हैज़ एवर बीन प्रेसिडेंट ट्वाइस. फिर वी हैव हैड 2 फीमेल प्रेसिडेंट्स, श्रीमती प्रतिभा पाटिल एंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आर करंट इनकम्बेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. उसके अलावा श्री जाकिर हुसैन है, ये हमारे पहले माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं. He was the first minority president. In fact, he was also the first president to die in office. 2 साल के आसपास वो president रहे थे, and then he died while he was still on the post of president. Then ज्ञानी जैल सिंह जो हैं, ये हमारे पहले सिख वो रहे हैं president. Then we have नीलम संजीवा रेड्डी. इनके बारे में भी आप 2 पॉइंट याद रख सकते हैं. पहले अनअपोज्ड प्रेसिडेंट रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी. देन एट द सेम टाइम आई थिंक ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं. द फर्स्ट टाइम ही कंटेस्टेड द इलेक्शन, ही लॉस्ट द इलेक्शन. देन द सेकंड टाइम ही वन, बट दैट टाइम इट वाज एन अनअपोज्ड इलेक्शन. ओके, नाउ लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं. देन he is the next highest ranking person under the list of preferences. Then the vice president जो है, इनका इलेक्शन कैसे होता है? he is elected again just like president, he is also elected by both members of both houses of parliament. हालांकि उनकी इलेक्शन में MLAs का कोई रोल नहीं होता, इट्स ओनली द MPs who elect him. ठीक है. देन इनके इलेक्शन में नॉमिनेटिंग मेंबर्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. देन इनका जो इलेक्ट्रल कॉलेज है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. और इनका इलेक्शन भी जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है. ठीक है. देन one thing we need to remember that he is the one who acts as president when the office of president fall vacant due to death, resignation, removal or any other absence of the president. Then इनका रिमूवल जो है, इनकी रिमूवल प्रोसेस इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है ना. बेसिकली इसमें है क्या, राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ, और अदर इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास होगा. सिमिलर एग्रीमेंट लोकसभा में पास होगा. देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनी एड्रेस इन बोथ हाउसेज लाइक इट इज डन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड थ्रू एन इफेक्टिव मेजॉरिटी और अ सिंपल मेजॉरिटी दे कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, ये जो क्वालिफिकेशंस हैं इनकी, उसमें ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. एट द सेम टाइम ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. इनका इलेक्शन और रोल जो है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. 63 और 70 जो है इट कवर्स द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. अब इसमें है क्या, ही इज इलेक्टेड बाय बोथ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. MLAs का इसमें कोई रोल या फिर कोई यूटिलिटी नहीं होती है उनकी इलेक्शंस में. ठीक है. बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दे आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. दोनों साथ मिलकर इलेक्ट करते हैं इनको. ठीक है. देन जो वोटिंग होगी इट विल बी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट. ठीक है ना. वंस ओके, इनकी जो कंडीशंस ऑफ ऑफिस हैं और अदर क्वालिफिकेशंस हैं, अगेन ही शुड बी एलिजिबल टू बी क्या कहते हैं, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मोर देन 35 years of age, शुड बी 35 और मोर. देन ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. देन ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी. ठीक है ना. देन इनकी जो क्या कहते हैं ऑफिस है, once he has been elected to his office,
देन ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं उसके भी उसकी तरह से एक्ट करते हैं। देन प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी है तो उस सिचुएशन में ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। इनका जो रिमूवल है दैट इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली। अगेन इनकी नॉमिने इलेक्शन और रिमूवल दोनों में एमएलएस का कोई रोल नहीं होता है। एंड देन फाइनली एक इफेक्टिव मेजॉरिटी उससे ही इनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देर इज नो नीड फॉर डूइंग दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट दैट इज डन इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट एज एन प्रेसिडेंट कब एक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेकेंट, अगर उनकी डेथ हो गई है, उनका रेजिग्नेशन हो गया है, रिमूवल है, ही इज आउटसाइड द कंट्री, या फिर ही इज एब्सेंट ड्यू टू एनी हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी एंड सो ऑन। ठीक है, जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ और अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ जो है उनको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर देन जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है, तब जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है, तब तक भी ही इज़ द पर्सन हु परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। और जब वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, देन ही इज एलिजिबल फॉर ऑल द सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस विच आर प्रोवाइडेड टू एनीवन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनके इलेक्शन और पावर्स को अगर हम एक कंपैरेटिव लेवल पर देखेंगे तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको इलेक्ट्रल कॉलेज इलेक्ट कर रहा है। अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका भी इलेक्ट्रल कॉलेज है, बट डिफरेंस ये है कि इन दोनों के इलेक्ट्रल कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्ट्रल कॉलेज इंक्लूड्स एमएलएज, बट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्ट्रल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड एमएलएज। ठीक है ना। देन यूनियन टेरिटरीज हैव नो रोल टू प्ले इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है जो विद वोट वैल्यू, ये यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इट्स डज नॉट गेट यूज्ड। ठीक है। देन president exercises a lot of function powers. He has executive, legislative, judicial, military and so on kinds of powers which are not there with the vice president. Okay, he is essentially performing two major functions. First is he is the chairman of Rajya Sabha, and the second is he is acting as a replacement for president in case his office is vacant. Okay, वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में आपको ये याद रखना है, अनअपोज वाइस प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार रहे थे, दोनों बार अनअपोज ही जीते थे ये। देन देर इज एम हिदायतुल्ला, ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका भी जो इलेक्शन था ये अनअपोज था। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आई थिंक इट इज़ श्री के आर नारायणन जो थे, इनका इलेक्शन जो था, इन दैट इलेक्शन ही वन बाय द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। उनका जो वोट मार्जिन है मैक्सिमम है। ही रिसीव्ड मोर देन 99% ऑफ वोट्स इन हिज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट वी शिफ्ट टू द टॉपिक ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव और एज वी से द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इनके बारे में हमको क्या याद रखना, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बिकॉज हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ही इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। इनका अपॉइंटमेंट होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो कैबिनेट मीटिंग्स है इसको चेयर करना हो गया, या फिर मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन करना हो गया, या फिर गवर्नमेंट का संचालन हो गया, ऑल दीज फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को जो भी असेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर डिसीजंस हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट को एडवाइस करना हो गया एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर का रोल है। then he is essentially a link between the president and the council of ministers, okay, and so on. प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है प्राइमरली 74 एंड 75, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर। देखिए 74 एसेंशियली क्या प्रोवाइड कराता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and with prime minister at its head, and that council of ministers should be there to aid and advise the president. President is supposed to work on the aid and advice of council of ministers, and prime minister is the head of this council. Okay, then जितने भी ministers होते हैं they are appointed by the president and they are appointed on the advice of prime minister of India, and they hold their office during the pleasure of president. ओके, पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट पीएम के एडवाइस पे अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। देन द अनदर रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ही इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। जितने भी क्या कहते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस हैं उससे प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म कराना हो गया, या फिर प्राइम मिनिस्टर कोई मैसेज दे रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उसको
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उससे इन्फॉर्म कराना हो गया, ये सारे प्राइम मिनिस्टर का रोल है. Then he is the leader of the council of ministers, so he is obviously the leader when the cabinet meetings are taking place. Then इन मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं हमारे नीति आयोग के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट की जो मीटिंग्स हो रही है, इनका एजेंडा जो हो रहा है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिसाइड हो रहा है. ठीक है. बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, इनकी जो एक्टिविटीज़ है इसको कोऑर्डिनेट करने का काम हो गया, दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और ही इंश्योर्स के जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें देर इज कोहिसिवनेस, देर इज यूनिटी इन दैट डिसीजन मेकिंग. ओके. लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना. एंड देन ही इज द चीफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट बोथ इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड द हाउस. ठीक है. जितने भी की ऑफिशियल्स हैं उन सब के अपॉइंटमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. ठीक है. अपने अटॉर्नी जनरल हो गए, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हो गए, CAG इलेक्शन कमीशन हो गए, इन सब के जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं दे आर डन बाय द प्रेसिडेंट, बट दे आर डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए, सारे कैबिनेट डिसीजंस जो होते हैं प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, सो ही कैन सेंड फॉर इट एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विद दैट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. कोई ऐसा मैटर है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है दैट इट शुड बी सेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो ही इज द वन, द प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु सबमिट्स इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. ही एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. देन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, कोई नए लॉज या कोई नए बिल्स लाने वाली है गवर्नमेंट, उन सब के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं. सो एसेंशियली ही इज इंश्योरिंग जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो स्टेट हेड को पता रहें. नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है 74-75 में हमने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को. ठीक है. ये हम लोग के 3 तरह के मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. पहला तो हो गया आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, देन देर इज डिप्टी मिनिस्टर्स. कैबिनेट में नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट वो हैं आपके MPs, दे आर इंक्लूडेड हु हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो आपके नॉर्मली थोड़े से कैबिनेट मिनिस्टर्स के विज़वी थोड़ा सा कम और लोअर लेवल ऑफ हायरार्की पे आता है. ठीक है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसे अभी हमारे श्री अर्जुन मेघवाल हैं, ही इज़ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, इंडिपेंडेंट चार्ज. अब ये जो है दे ऑल्सो दे इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज देयर ऑफिस, बट दे आर नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर एट द सेम टाइम. ठीक है. देन फाइनली वी हैव डिप्टी मिनिस्टर्स. इसमें यूजुअली हम रिलेटिवली न्यू ब्लड को इंडक्ट करते हैं सो दैट दे गेट टू हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एज वेल एज हाउ द मिनिस्ट्रीज आर रन एंड सो ऑन. ठीक है ना. यूजुअली दे फंक्शन अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर और सम मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ओके. अब हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज that the union executive or the union council of minister is responsible to the parliament. जब तक पार्लियामेंट में क्या कहते हैं इनकी मेजॉरिटी है, till that time only they can stay in power. Whenever they lose their power in the parliament, they get removed from it. Okay, somebody else takes their place. Then total strength. पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं. करंटली आफ्टर 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नेवर बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ओके. अब बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट विल बी बाउंड बाय द एडवाइस, वट एवर एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हाउएवर ही कैन आस्क इट फॉर रिकंसिडरेशन, बट एक बार रिकंसिडरेशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस दे दी है तो हिल बी बाउंड बाय इट. ओके. देखिए, अनदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड मिनिस्टर और इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, अ पर्सन मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस. कोई कंपल्शन नहीं है लोकसभा के ही मेंबर हो. ही कैन बी मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो, राज्यसभा ऑल्सो. इन फैक्ट इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर,
then also he can be appointed a minister, but in that circumstance he will have to get himself elected within the period of 6 months. In case he fails to do so, his post falls vacant. ठीक है. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जैसे मैंने आपको बताया, इट लिमिट्स द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, एंड द नंबर ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है ना. जैसे अभी हमारी लोकसभा की 545 की स्ट्रेंथ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी 81. ओके, लेट्स लुक एट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. So, Article 76 of the Constitution contains the provisions with respect to the office of Attorney General of India, who is the highest law officer of the country, the chief legal advisor to the Union government, as well as the primary law officer representing the government of India. Okay. See, the Attorney General is appointed by the President, and in terms of qualification, he must be a person who is qualified to be a judge of the Supreme Court. इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट, ईदर ही मस्ट बी एन एडवोकेट विद अ 10-year प्रैक्टिस, और ही मस्ट बी अ हाई कोर्ट जज विद अ 5-year प्रैक्टिस, एंड फाइनली ही कैन बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. इन तीनों में से कोई भी होगा कि 10-year प्रैक्टिस वाला हाई कोर्ट एडवोकेट, 5-year प्रैक्टिस वाला हाई कोर्ट जज, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट. एनी वन ऑफ दिस qualifications if he possesses, he can be appointed as the Attorney General of India. Okay. As far as the term of office of an Attorney General is concerned, there is no fixed term that has been laid down in our Constitution. He sits in his office during the pleasure of the President of India, and he can be removed at the pleasure of President of India. Similarly, there is no mention with respect to the salaries, allowances, etc. of the Attorney General, and his salaries, privileges, allowances, etc. they are dependent upon the pleasure of the President. Okay. Now let's look at the powers, functions, and limitations of the Attorney General. Okay. As regards as the functions are concerned, see, he is supposed to appear on behalf of Union of India in such cases as the President may assign to him, and he's also supposed to perform those duties as the President may allot to him. Now when it comes to allotting duties, they primarily involve representing the Union of India in the Supreme Court and the High Court, and appearing on behalf of Union of India under Article 143 whenever the President refers the Supreme Court or asks for the advice of Supreme Court. Then it is the Attorney General who represents the Union government or puts up the Union government stand out there. Okay. As regards his powers are concerned, so to perform these duties, he has a right of audience in all the courts of India. He can appear in Supreme Court or High Court or any other court where Union of India is a party. Then he can take part in proceedings of the Parliament. He can take part in proceedings of the committees of the Parliament. Okay. However, it comes with the rider that when he is sitting in the proceedings of Parliament, or for that matter parliamentary committees, he only has a right to speak. He does not have a right to vote out there. Okay. Then he can engage in private legal practice. But okay, this obviously comes with certain restrictions. For starters, like he cannot, under his private practice, advise against the Union government. Similarly, he cannot take any brief wherein Union government is one of the parties. And then finally, he cannot be a counsel in a criminal prosecution. नॉर्मली किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में सेकेंड पार्टी या फिर जो प्रोसिक्यूटिंग पार्टी हो गई वो इनवेरिएबली स्टेट होगा, एंड इन केस ऑफ सेंटर it has to be Union of India. So he cannot defend an accused in a criminal case without the prior permission of the government of India. Okay, let's take a PYQ quickly. See, with reference to Attorney General of India, consider the following statements. He appears before the Supreme Court and High Court on behalf of the government. It is correct. He can be a member of any parliamentary committee. Totally correct. He enjoys the right to vote. देखिए ये मैंने आपको अभी बोला. He has only a right of audience in parliamentary committees or parliamentary meetings, parliamentary sittings for that matter. But he does not have a right to vote in either of those. So only statement 1 and statement 2 are correct, and option B is the right option. Okay.
Okay, let's quickly take a PYQ on Attorney General. With reference to Attorney General of India, consider the following statements. First, he appears before Supreme Court and High Court on behalf of government. Obviously, this statement is correct. He can be member of any parliamentary committee. Yes, he can be. He enjoys the right to vote. This is, as I told before, a wrong statement. So amongst these, 1 and 2 will be the correct statement. Okay. See, the correct answer is B, 1 and 2 only. Then let's see a couple of more PYQs. See, the President of India. Consider the following statements. First, the President shall make rules for the more convenient transaction of business of Government of India and for allocating the said business among ministers. That is a correct statement. I told you this while dealing with the executive power of the President. Okay. Then all executive actions of Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President. Again, a correct statement. All executive actions are taken in the name of the President. So the correct option would be both 1 and 2. Then consider the following statement. The President of India can summon a session of Parliament at such place as he or she thinks fit. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in an year, but it's not mandatory to conduct all the 3 sessions. And thirdly, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. ठीक है ना? देखिए, the President of India can summon a session at such place as he or she thinks fit. That is a correct statement. Then Constitution provides for 3 sessions. Constitution में ये mentioned नहीं है कि 3 सेशन होने ही होने चाहिए पार्लियामेंट के. सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि 3 सेशन होने ही होने चाहिए पार्लियामेंट के. Even if 2 sessions are happening, that also fits the bill. Okay. Then there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet. That is a perfectly correct statement. So the correct option would be option A, 1 and 3 only. Okay. Then next is okay, it's the same thing. Option A is the correct answer. And now, with reference to the union government, consider the following statement. First is N. Gopalaswamy, a younger committee, suggested creation of the office of Prime Minister. Okay. Then the Prime Minister is the ex officio chairman of the Planning Commission. And the Prime Minister recommends the appointment of the Attorney General of India. अब इन तीनों में से only one statement is correct, that is option 3. Oh, sorry. Statement 3 is the correct option. So option B would be the right answer here. Okay. All right. Let's begin with the Indian judicial system, or in particular the Supreme Courts and the High Courts. See, this topic is again a very relevant topic. The Union Judiciary in particular and High Court as well, they both bring almost 1 or 2 questions a year in your prelims exam every now and then. And सबसे ज़्यादा इनका रेलेवेंस ये है कि इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो अगर आपको क्लियरली दिमाग में है तो यू कैन टोटली हिट अपॉन दैट क्वेश्चन. बहुत ही सिटिंग डक टाइप का टॉपिक है. You either know it thoroughly, or if you do not, you're bound to face some sort of trouble. Okay, so please do pay some serious attention when we are dealing with this topic. All right. Okay, let's begin with judicial. So judiciary, simply stated, is one of the organs of the state which has been assigned with the task of interpreting the laws as well as punishing the deviations. जो भी स्टेट के लॉज हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, ये सारा टास्क जुडिशरी का है. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ indirectly implementing the laws in the way that where anybody breaks the laws, it is the judiciary which has the responsibility to punish those deviators. Okay, so the Indian Constitution provides for a single integrated judiciary, and it consists of a 3-tier system of courts. We have the Supreme Court at the top, then we have the High Courts at the state level. They are the top judicial body at the state level, and then we have district and session courts and other lower courts which constitute the subordinate judiciary. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट होती है जो हाई कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द नेशन होती है. हाई कोर्ट का हम बोलेंगे तो हाई कोर्ट जो है टॉप जुडिशियल बॉडी है स्टेट लेवल पे, और बाकी फिर हमारी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी हो गई. दीज सबऑर्डिनेट जुडिशरीज दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट.
सो दिस इज लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको क्लियरली याद होने चाहिए. नॉर्मली वो आपको थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलते हैं, बेरैक में आप देखेंगे या तो, और अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स में मोस्टली उनका कॉन्टेक्स्ट ही दिया होता है ज़्यादा करके. बट हियर यू कैन पिक अप दिस स्लाइड एंड यू कैन जस्ट मग दिस थिंग अप. आपको ये याद रखनी होगी कि कौन सा आर्टिकल किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से डील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के. ठीक है, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस स्लाइड in form of PDF at the end of my lecture, and if you can subscribe to the channel you can always download it from the channel itself. Okay, but इसको revise ज़रूर से करना आपको regularly. Let's see them one by one. Okay, first of all, appointment of Supreme Court judges. See, the Supreme Court is the highest judicial authority as well as the top law making body. अपने इंडिया की टॉप लॉ मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है इंडिया के रिस्पेक्ट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है. ठीक है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 दे डील विद सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स कवर्ड अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब इट कंसिस्ट्स ऑफ 34 जजेस. Initially, when the Supreme Court was made, it consisted of 1 Chief Justice and 7 judges. अभी जो इसकी current strength है वो है 34 judges, 1 Chief Justice of India and 33 judges. Justice B.R. Gawai अभी recently ही Supreme Court के Chief Justice बनाए गए हैं, so you need to remember that fact. ठीक है, he is the 52nd CJI of India. Then, as far as appointment of the judges of Supreme Court are concerned, they are appointed by the President through a warrant under his hand and seal. Okay. And in terms of qualification of a judge of Supreme Court, see, there are 3 things that have been laid down in the Constitution with respect to qualification. First, he must be a citizen of India. That is very pertinent. That apart, first of all, he should be either a high court lawyer with a 10-year practice, or he should have been a high court judge with a 5-year practice, और एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. 3 कंड में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए. या तो वो 10 ईयर प्रैक्टिस वाला हाई कोर्ट लॉयर रह रहा हो, या फिर वो 5 ईयर प्रैक्टिस का हाई कोर्ट जज, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ही शुड बी ए एमिनेंट जूरिस्ट. ओके, then moreover, with respect to appointment, the constitution requires that while appointing the judges of the Supreme Court, the president is bound to consult the chief justice of India. ठीक है, अब ये जो कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दिस हैज़ लेड टू द इमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कलीजियम सिस्टम. कलीजियम सिस्टम आपको क्लियरली समझना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है. So what essentially this collegium system means is the Chief Justice of India along with 4 senior most judges constitute the collegium system. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग का वो क्या प्रोवाइड कराता है, वो कहता है कि बिफोर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेजिडेंट मस्ट कंसल्ट सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी. ठीक है, but this provision has been interpreted by the Supreme Court to mean that he must consult the Chief Justice of India. And जो Chief Justice of India का consultation है, individual level पे it's not binding. In order to be binding, that consultation must be given by the Chief Justice of India after discussing the names with 4 senior most judges of the Supreme Court. ठीक है, जहां हम सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और जहां हम अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं वहां पे भी ये कोलिजन सिस्टम काम करता है, एंड देयर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सपोज टू कंसल्ट विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, देन देयर इज टर्म सैलरीज एंड रिमूवल ऑफ द जजेस. सी, द टेन्योर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65 years. A Supreme Court judge is provided a security of tenure. मतलब एक बार आपने उनको अपॉइंट कर दिया है, you cannot just arbitrarily remove them. The doctrine of pleasure of the president does not apply upon them. ठीक है, then their salaries as far they are concerned, their salaries are covered under Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Service Act 1958. ठीक है, then comes the removal. A Supreme Court judge cannot be arbitrarily removed, as I said before. So thanks to their security of tenure, which essentially is provided to ensure independence of the judges of the Supreme Court,
a Supreme Court judge can be removed only through a process of impeachment. ठीक है ना. अब impeachment जो है इसकी proceedings का क्या फंडा रहता है. See, you have to understand that if at all any charge has been laid against a Supreme Court judge, he can be removed through an action of the Parliament of India. ठीक है. And he can be removed only on two grounds: a ground of proven misbehavior as well as a ground of incapacity. And any motion for removal of a Supreme Court judge, it must pass in both houses of the Parliament with special majority, that is 2/3 of the total number of members sitting and voting, who are present and voting. Okay. And अभी तक का जो भी हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है उसमें देयर हैज़ बीन नो इंसिडेंट वेयर एनी सिंगल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट थ्रू इम्पीचमेंट. अब ये जो इम्पीचमेंट है उसमें अनदर फैक्ट, क्विक फैक्ट, whenever any impeachment proceedings are begun, then it is the Judges Inquiry Act in which the procedure for investigation or against the judges is undertaken. देखिए होता क्या है, जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलती हैं, सो एन इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी ऑफ 3 जजेस इज सेट अप बाय द पार्लियामेंट, and that committee functions under the provisions of Judges Inquiry Act. Okay, temporary and ad hoc judges. There are besides the regular Supreme Court judges, there are provisions with respect to some ad hoc judges, retired judges as well as some acting judges. तो सबसे पहले हम एक्टिंग सीजीआई का देखते हैं. आर्टिकल 126 जो है, अंडर आर्टिकल 126 द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ सुप्रीम कोर्ट जज एज एन ad hoc judge for a temporary period if the CJI's office is vacant or if the CJI is otherwise unable to perform or discharge the responsibilities of his office. तो किसी कारण से CJI अपने सीट से एब्सेंट हैं या फिर उनकी पोस्ट ही वेकेंट है, तो उस सर्कमस्टांस में प्रेसिडेंट हैज़ द पावर दैट ही कैन अपॉइंट सम अदर सुप्रीम कोर्ट जज टू टेम्परली एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और कभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट जज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन में बैठ के फंक्शन कर रहा होता है, तो देन ड्यूरिंग दैट टाइम ही इज एलिजिबल फॉर ऑल पावर्स, प्रिविलेजेस, सैलरीज एटसेट्रा दैट आर पेएबल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके. देन देर इज एड हॉक जज. अब ये एड हॉक जज का क्या फंडा है, ये टेम्परेरी जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम कम पड़ जाता है या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है. तो बेसिकली इसमें है क्या कि whenever there is a lack of quorum in Supreme Court or the court is of the opinion that the workload is too much and there is a need for attendance of a temporary judge, it can request so. And in that scenario the president has the right or the authority to appoint an ad hoc judge. अभी ad hoc judge होता कौन है? See, as an ad hoc judge the president can appoint any high court judge. एक एड हॉक जज जो है ये कोई हाई कोर्ट जज होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है टेम्परेरीली. सो व्हाट हैपेंस इज द प्रेसिडेंट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ हाई कोर्ट जज एज अ ad hoc judge of the Supreme Court. So in order to be appointed as an ad hoc judge, such high court judge must possess the qualifications of a Supreme Court. मतलब इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी हाई कोर्ट जज है जिसे हम एड हॉक जज की तरह अपॉइंट करेंगे, ही मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. यानी उसके पास एटलीस्ट एज अ हाई कोर्ट जज 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बिफोर बिकमिंग द हाई कोर्ट जज ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट विद 10 years प्रैक्टिस, और या फिर वो प्रेसिडेंट की आइज में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने ज़रूरी हैं. ठीक है ना. Okay, as I said before, the consent of the Chief Justice of India is mandatory for ad hoc appointments. Moreover, जिस हाई कोर्ट जज को हम ad hoc जज बना रहे हैं उसकी कंसेंट भी बहुत रेलिवेंट हो जाती है. Then there is appointment of retirement judges to the Supreme Court. देखिए रिटायरमेंट जजेस का सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का जो है उसमें ये रहता है, आर्टिकल 128 है, इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस into the Supreme Court. Again it is a temporary measure, and again it is done with the purpose of reducing the workload of the Supreme Court, or in some circumstances to take the benefit of the
एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस ऑफ दैट एस्टीम जज, कोई पर्टिकुलर जज है वो किसी सब्जेक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट है और आपको उनकी सर्विसेज लेनी है, तो यू कैन रिक्वेस्ट हिम टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एक्ट एज अ रिटायर्ड जज। ठीक है। अब किसी रिटायर्ड जज को आपको सुप्रीम कोर्ट सेटिंग्स में बिठाना है, तो द फर्स्ट थिंग दैट इज मैंडेटरी इज दैट ही शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। Okay, then Article 128, what it reads is CJI may, with prior consent of the President, request any retired Supreme Court judge or retired High Court judge who is duly qualified to sit and act as a judge of Supreme Court। देखिए, कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो, दोनों को सुप्रीम कोर्ट में एज अ रिटायर्ड जज अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है ना। अब असेंशली ये जो है ये टेम्परेरी मेजर है, एज आई हैव टोल्ड यू। देन this measure requires a prior consent of the, or rather recommendation of the Chief Justice of India as well as an approval by the President of India। ठीक है। एंड उसके अलावा जिस रिटायर्ड जज को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसका भी अप्रूवल आपको चाहिएगा। एंड देन वंस retired judge has been appointed to the sittings of Supreme Court, then in that circumstance he will have all powers, privileges and emoluments of Supreme Court judge। देखिए, उसे सुप्रीम कोर्ट की सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि विल ही हैव ऑल पावर्स, प्रिविलेजेस एंड सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? नो, he gets powers, privileges and emoluments of a Supreme Court judge. He will have the same jurisdiction as that of a Supreme Court judge, but he will not be receiving the same salaries as a Supreme Court judge receives। ठीक है। then दूसरी चीज ये है कि he will not otherwise be considered as a Supreme Court judge। वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा बट ही विल नॉट अदरवाइज बी कंसीडर्ड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्टैंड करते हैं वहाँ पे ही विल नॉट बी स्टैंडिंग, ही विल नॉट गेट दैट स्टैंडिंग। मोरोवर जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसको काउंट करना होता है, देयर ऑल्सो ही विल नॉट बी काउंटेड वाइल काउंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन। ओके ओके, नाउ लेट्स लुक एट द जुरिस्डिक्शन। देखिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसको 5 तरह के जुरिस्डिक्शंस दिए हुए हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन देर इज अपैलेट जुरिस्डिक्शन, देन देर इज एडवाइजरी, रिट जुरिस्डिक्शन एंड रिव्यू जुरिस्डिक्शन। अब इसमें से रिट विल डू द लास्ट, लेट्स अंडरस्टैंड अदर्स। फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, या तो सेंटर गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में कोई केस हो जाता है, या फिर 2 स्टेट्स के बीच में कोई केस है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई केस हो रहा है, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो वेयर इन 1 or more states are on one side and central government and few states are on another side। इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं उन सब में सुप्रीम कोर्ट इज द क्या कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। केवल सुप्रीम कोर्ट ही इन केसेस से डील कर सकती है। सिमिलरली हमारे जो एमपीज़ हैं, इनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उससे रिलेटेड केस है, इवन देयर ऑल्सो इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द ओनली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अदर कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर। देन कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है अंडर आर्टिकल 143, उससे रिलेटेड जुरिस्डिक्शन जो है वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। देन देयर इज अपैलेट जुरिस्डिक्शन। देखिए, कोई भी सिविल केस है या फिर कोई क्रिमिनल केस है, इन सब में द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल रिकोर्स, द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। सारे सिविल या क्रिमिनल केस जो भी हैं इन सब में, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी फॉर दैट मैटर, इन सब में जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है। ये नॉर्मली अपैलेट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के पास है फाइनल अपैलेट जुरिस्डिक्शन, और अपना यूनियन लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये आ जाता है जुरिस्डिक्शन। ओके। Then there is advisory jurisdiction. As I was telling before, under Article 143, Supreme Court has the power to advise the President. The President can seek the advice of Supreme Court with respect to any matter, whether of any question, whether of law or of fact, on which the President deems it necessary to seek an advice of the Supreme Court. Or in matters में, it is the Attorney General of India who is the legal officer present on behalf of President to पुट अक्रॉस द साइड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी साइड है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। एंड अनदर थिंग, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है 143 का, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जब सुप्रीम कोर्ट से वो कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लेते हैं तो ही इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो दिस एडवाइस। ओके। देन देर इज रिव्यू जुरिस्डिक्शन। देखिए, रिव्यू जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी फाइनल जजमेंट ऑर्डर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही है जो
उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू दीज ऑर्डर्स और जजमेंट्स ऑफ इट्स ओन, और बिकॉज इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अगर इन केस आपको कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो इन order to ensure that the justice is served, it can review its own judgments. ठीक है, then it also has a power of granting a special leave to appeal under article 136 SLP बोलते हैं हम लोग इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में। तो कोई भी जजमेंट ऑर्डर, कोई डिसीजन है, उसके अगेंस्ट जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, एंड इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय एनी जजमेंट ऑर्डर डिसीजन एटसेट्रा ऑफ अ लोअर कोर्ट, दे कैन go and appeal to the Supreme Court of India under Article 136. ठीक है, now next is the writ jurisdiction. ये बहुत relevant है. See, the writ jurisdiction of Supreme Court is covered under Article 32. Okay, let's look at it in the detail. Okay, this is a comparative table of writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. As I was telling you, Supreme Court का जो writ jurisdiction है ये Article 32 में है. Under Article 32, the power of Supreme Court to issue directions, orders and writs for the enforcement of fundamental rights is guaranteed. अब देखिए ये आर्टिकल 32 जो है ये पार्ट 3 में इंक्लूडेड है. व्हाट डज इट एसेंशियली मीन इज that the right to go to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights or in case of violation of fundamental rights has itself been made a fundamental right. ठीक है, then डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा हुआ. ये बहुत ही पर्टिनेंट आर्टिकल है हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, और हमारे क्या कहते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी, और हमारे जुडिशियल इंडिपेंडेंस से भी, या फिर जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी. ठीक है, देन जस्ट एज सुप्रीम कोर्ट हैज़ द writ jurisdiction under Article 32, similarly high courts also have a same jurisdiction under Article 226. Under Article 226, even high courts can issue different kind of writs for the protection of fundamental rights. However, in their case, there is a slight difference. Their writ jurisdiction, the writ jurisdiction of high courts is larger than that of the Supreme Court, क्योंकि जो high courts हैं, they can issue writs in other matters as well, apart from enforcing the fundamental rights. Okay. देखिए हाँ, अब ये एक निमोनिक बना रखा है हमने जो आपको रिट्स को याद रखने में हेल्प करेगा. सी, हेल्प मी प्रिवेंट क्रेजी क्वैक्स. देखिए रिट्स प्राइमरली 5 तरह की होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स के पास अवेलेबल हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो. ठीक है, अब इसको आप इस निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं. हेल्प मी प्रिवेंट क्रेजी क्वैक्स. एच, हेल्प का एच जो हो गया हेबियस कॉर्पस हो गया, मी मैंडेमस, पी फॉर प्रोहिबिशन, क्रेजी का सी हो गया सर्टियोररी, एंड क्वैक्स हो गया आपका क्वो वारंटो. ओके, देखिए अब ब्रिट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो हेबियस कॉर्पस इट लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. ठीक है, एसेंशियली इट इज अ कमांड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एनी अथॉरिटी or to any government body asking it to bring any person which this authority has detained before the Supreme Court. And if the Supreme Court is of the opinion that the detention was illegal, it can set that person free. So this habeas corpus is considered the bulwark of democracy. Personal liberty की जो है it is one of the most important instrument to ensure personal liberty, and hence it is one of the most important instrument of democracy as well. ठीक है, देखिए जो हमारी रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एक तो ये पूरा का पूरा ही केवल स्टेट एक्शंस के अगेंस्ट होता है. ठीक है, एसेंशियली जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट के अगेंस्ट हैं, तो जो भी रिट्स होंगी वो प्राइमरली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट होंगी. बस ये हेबियस कॉर्पस है जो इकलौती ऐसी रिट है जिसको स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के केसेस में अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, जैसे पुलिस हो गई, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हो गई, कोर्ट्स हो गई, या फिर कोई और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के रिस्पेक्ट में हो गया. मतलब कई सिनेरियोज में दिस रिट कैन बी इशूड. Then there is the next writ is mandamus. Mandamus literally means we command. ठीक है, under this writ the Supreme Court commands any public official to either do a legal duty or refrain from doing a legal duty. ये रिट इशू करी जाती है जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल इज नॉट परफॉर्मिंग देयर लीगल ड्यूटी, तो कोर्ट जो है उसको एक इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इशू करती है कि गो एंड डू योर ड्यूटी.
ओके, देखिए अब ये जो रिट है मैंडेमस, दिस कैन नॉट बी इश्यूड टू प्रेसिडेंट, गवर्नर और जुडिशरी, ठीक है ना, और पर्सन इन देयर पर्सनल कैपेसिटी. द नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का काम क्या है? इट स्टॉप्स अ लोअर कोर्ट और अ लोअर ट्रिब्यूनल फ्रॉम ओवर स्टेपिंग देयर जुरिस्डिक्शन. कभी भी कोई लोअर कोर्ट है या फिर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई जैसे ट्रिब्यूनल, when they cross their jurisdiction and do any act, pass any judgment or do any act which is beyond their jurisdiction, then in these circumstances the Supreme Court can pass the writ of prohibition and prohibit them from going further ahead with these actions. Okay, ये रेट जो है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है. देन देयर इज सर्टियोररी. अब ये सर्टियोररी जो है, इट क्वॉशेस एनी इलीगल ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल. देखिए इलीगल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? कोई लोअर कोर्ट है, व्हेन इट इज रॉन्गली इंटरप्रेटिंग लॉ और इट इज इंटरप्रेटिंग द लॉ इन अ पर्टिकुलर मैनर विद अ मालाफाइड इंटेंशन, या फिर इट इज ओवरस्टेपिंग अ जुरिस्डिक्शन विच इट डज नॉट पोजेस, मतलब बाय मिस्टेक इट ओवरस्टेप्स. ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि मे बी आई हैव दिस jurisdiction when in reality does not have that jurisdiction. In such cases what the Supreme Court can do is it can call for the records of the case to itself to certify or rather to check the veracity of the judgments that are getting passed by the lower courts, and if it feels that the judgment is not right, it can quash that decision or judgment. Okay, again this can be passed against judicial or quasi judicial authorities. ठीक है. देन फाइनली वी हैव क्वो वारंटो. क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी. देखिए ये जो है नॉर्मली किसी गवर्नमेंट पोस्ट होल्डर को किया इशू की जाती है टू आस्क देम टू प्रूव द वेरासिटी ऑफ देयर और अदर द जेन्युइननेस ऑफ देयर क्लेम टू अ पर्टिकुलर ऑफिस. If some legal or if some government officer has usurped a public office, then the Supreme Court can issue that writ and ask him कि भाई आप किस authority से उस post पर बैठे हैं. और अगर वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाते हैं, इफ ही इज नॉट एबल टू गिव अ साउंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ his usurpation of office, then the Supreme Court can pass an order and remove him from his office. Okay, let's look at the PYQ. Writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to prohibition किस लिए इशू करी जा रही है. ठीक है, फर्स्ट इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन. अब देखिए मैंने बताया था आपको कि ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो अपने आप ही वीड आउट हो जा रहा है. देन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, अगेन इट गेट्स वीड आउट. देन लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, ये बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन है. देन गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम following an unconstitutional policy, again this does not qualify as a right option. So amongst these, option C is the right answer. Okay, then next we have is with reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statements. देखिए, mandamus will not lie against a private organization until it is entrusted with a public duty. Then mandamus will not lie against a mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. And third, any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. ठीक है, देखिए मैंडेमस जो होती है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अगेंस्ट आती है, ठीक है ना, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो आ नहीं सकती. तो हियर द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज राइट. देन सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी. जब किसी पब्लिक ड्यूटी से वो इंटरेस्टेड होगी तो इट ऑटोमेटिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. तो वहां पर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन सेकेंड इज मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, अब where a company is a government company, in that scenario, see, a company is entirely different from state. तो यहाँ पे it will depend upon what is the extent of control of the central government, but primarily it will not be considered state. ठीक है ना, so this option is wrong. Then the third is a public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain writ of quo warranto. This is right. There is no concept of locus standi with respect to issuance of writs. Any public-spirited citizen can go on behalf of anyone else and request the court to issue directions in the nature of writs.
So amongst the following options, option 1 and 3 are correct, which means option C is the right option. Okay, it's C it is. Then okay, this is essentially what we have to deal with when we are talking about Supreme Court. ये आपको कंसाइज फॉर्म में याद रखने हैं सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड प्रोविजंस. ये प्रोविजन थोड़े से और भी हम आगे करेंगे व्हेन विल बी डीलिंग विद हाई कोर्ट्स, बिकॉज वहाँ पे आई वुड ट्राई टू टीच यू ऑन अ कंपैरेटिव लेवल. दोनों के रिलेटेड प्रोविजंस दिखा के आपको समझाऊंगा कि भाई हाई कोर्ट में क्या कैसे अलग हो जा रहा है. ठीक है ना. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस आर्टिकल्स जो पहले आपको शुरू में टेबल दिया था. आई बी प्रोवाइडिंग ऑल दीज स्लाइड्स एट द एंड ऑफ माई लेक्चर इन अ PDF फॉर्म, और आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट यू कैन लुक अगेन एट दीज स्लाइड्स. और जो निमोनिक्स हैं, जैसे आपके रिट्स के निमोनिक्स हो गए, देयर सम अदर निमोनिक्स ऑल्सो दैट आई माइट हैव प्रोवाइडेड, या फिर आपके ये PYQs हो गए, या फिर ये जो आर्टिकल्स की लिस्ट है, इन सबको आप क्विकली रिवाइज कर सकें फटाफट देख देख के. ठीक है. ओके, अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स. अभी जैसे मैं बोल ही रहा था कि ये लिस्ट है, ये मोस्ट पर्टिनेंट आर्टिकल्स की लिस्ट है. ठीक है ना. दे आर नॉट द एंटायरिटी ऑफ इट, बल्कि जहां से क्वेश्चन उठता है उन आर्टिकल्स की है. Alright. Anyways, with this we begin with the topic of High Court. See, High Courts are the topmost authority as legal authority as well as the topmost judicial body at the state level. Even though they function under the supervision and umbrella of Supreme Court, but जहाँ तक state level की बात आती है, they are the top law interpreting body of a state. ठीक है. हमारे जो स्टेट लेवल जुडिशियल सिस्टम है उसके एपेक्स पे हाई कोर्ट्स बैठी हुई हैं. अब आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक ये हाई कोर्ट से डील करते हैं. देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है. स्टेट्स विद कॉमन हाई कोर्ट्स, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है. ठीक है ना. दिस इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच इज ड्यू. इससे क्वेश्चन बहुत बार आता भी है इस तरह का, और ये क्वेश्चन भी थोड़े टाइम से ड्यू भी है. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज हाई कोर्ट्स. देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का जो एरिया और जुरिस्डिक्शन है जो वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इन 4 जगह पे है. ठीक है. देन देर इज कैलकाटा हाई कोर्ट. ये हमारी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भी है, एंड एट द सेम टाइम इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो वेस्ट बंगाल और अंडमान दोनों पर है. देन देर इज गुवाहाटी हाई कोर्ट. इट कवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स. असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, ये 5 गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं. देन केरला हाई कोर्ट, साउदर्न मोस्ट टिप. केरला हाई कोर्ट में केरला और उसके लेफ्ट में लक्षद्वीप दोनों आते हैं. ठीक है. देन मद्रास हाई कोर्ट राइट में ही आ गया. तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों इसमें मद्रास हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है. फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. देन त्रिपुरा एंड मणिपुर, इन दोनों की पहले कंबाइंड हाई कोर्ट होती थी, बट अब दे हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स. और अब हमारी जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है दैट इज 25 नाउ. ठीक है. अब इसको भी आप निमोनिक्स की फॉर्म में याद रख सकते हैं. देखिए, मैंने कुछ छोटे छोटे निमोनिक्स बना के दिए हैं यहाँ पे. जैसे बॉम्बे है, दादा गो बॉम्बे, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गो फॉर गोवा एंड बॉम्बे ऑफ कोर्स. अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में आ गया. ठीक है. फिर कैलकाटा के लिए है कॉल अंडमान. कॉल से कैलकाटा हो गया. अंडमान ऑफ कोर्स अंडमान ऑल्सो कम्स अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट. देन गुवाहाटी के लिए हो जाएगा मीनाक्षी चल असम, मीनाक्षी चल असम. मी फॉर मिजोरम, ना फॉर नागालैंड, शी फॉर शिलोंग ऑफ मेघालय. और अदर जो शिलोंग है वहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की बेंच है, तो आई हैव रिटन इट मीनाक्षी. एंड देन चल ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स अरुणाचल प्रदेश, एंड देन फाइनली असम. ओके. देन केरला के लिए केरला के अंदर से ही निकल जाता है, केयर फॉर केरला, एंड लास्ट का जो LA है दैट स्टैंड्स फॉर लक्षद्वीप. ओके. देन मद्रास हाई कोर्ट आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि टप्पू हो गया, या तो फॉर दैट मैटर, या फिर कोई और आप छोटा सा एब्रीविएशन बना सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको जोग्राफिकल एरिया याद है तो पुदुचेरी जो है उसकी आप लोकेशन अगर काउंट कर सकते हैं तो फिर आपको याद आ जाएगा कि तमिलनाडु हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही वो आएगा. ठीक है. देन पंजाब से हारा चंडीगढ़, ये भी एक एब्रीविएशन, या फिर पुन से हारा चंडीगढ़. ठीक है. पुन से पंजाब हो गया, हारा से हरियाणा हो गया, और चंडीगढ़ तो फिर हो ही गया. ठीक है ना. ओके. जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, अभी हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था वैसे ही हाई कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन है. अगेन जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट्स हैव एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अंडर देयर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन essentially it's like cases relating to wills, cases relating to divorce, company laws, और कुछ पर्टिकुलर पिक्यूनियरी लिमिट के केसेस जो हैं ये सब हाई कोर्ट्स के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं. ठीक है. उनका जो
इंट्रा गवर्नमेंट केसेस है, इंटर गवर्नमेंट केसेस हैं, वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था कि केसेस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स एंड ऑल दैट, वो उस तरह के जो केसेस हैं वो इनके यहाँ पे नहीं आते हैं। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ पे कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का फंडा नहीं है, यू नो द गवर्नर कैन नॉट टेक एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट एंड ऑल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अपेलेट जुरिस्डिक्शन। स्टेट लेवल पर जितने भी सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं उनके अगेंस्ट जो फाइनल अपेलेट अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट है। ठीक है, और it has the power of reference, it has the power of review, it has the power of revision of judgments of lower courts. ठीक है, then it has a power of taking appeal against its own judgments also. अगर हाई कोर्ट का कोई सिंगल जज है, उसने कोई जजमेंट दिया है, तो उसके अगेंस्ट भी मल्टीपल जज बेंच, जिसे हम डिवीजन बेंच बोलते हैं, वो अपील सुन सकती है। ठीक है, then there is supervisory jurisdiction. The Supreme Court, it is the apex judicial body at the state level, so it has a supervisory jurisdiction over all the courts or all the subordinate judiciary or subordinate courts at district and lower levels. उनके रिस्पेक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाने का काम भी कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। ठीक है, देन उनके अपॉइंटमेंट पोस्टिंग्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट उसके हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बिना नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, उनके जो भी क्या कहते हैं सिलेक्शन है, उससे रिलेटेड रूल्स भी जो है वो हाई कोर्ट बना सकती है। देन फाइनली वी हैव रिट जुरिस्डिक्शन। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, अगेन वी रीड कि जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 226, इट इज़ अ टैड बिट इलेबोरेट देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ नॉर्मल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केसेस में ही नहीं, अदरवाइज ऑल्सो भी इट कैन इश्यू रिट्स। ठीक है, एंड मोर ओवर जैसे जो हमने 5 रिट्स पढ़ी थी, it can issue writs, the 5 writs which the Supreme Court it can issue, and it can issue other writs also. जैसे writ of injunction है, वो हाई कोर्ट इशू कर सकती है पर सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकती है। ठीक है ना, then it can issue other directions and orders also. Okay, now let's look at composition and constitution of high courts. देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था कि 34 जजेस होते हैं, हाई कोर्ट में कोई डिफाइंड नंबर ऑफ जजेस नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट्स एज वेल एज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर उनको ज़रूरत लगती है कि वर्कलोड ज़्यादा है, देन ही कैन इंक्रीज द नंबर। ओके, सो एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज कंसर्न, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, बट ये होता है कि वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जिसका जज हम अपॉइंट कर रहे हैं। जो भी हाई कोर्ट जज है, उनका जब अपॉइंटमेंट होता है, उसमें चीफ जस्टिस, गवर्नर और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इन तीनों का कंसल्टेशन होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगेन वी फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द कलीजियम सिस्टम। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि CJI का इंडिविजुअल जो कंसल्टेशन है, दैट इज़ नॉट वैलिड। इन ऑर्डर टू बी वैलिड, द CJI मस्ट गिव एडवाइस आफ्टर कंसल्टिंग 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, मैं इसको रीड्राफ्ट करूँगा। देखिए, जो प्रेसिडेंट हैं वो 3 लोगों को कंसल्ट करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नर को। ठीक है, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये अपनी एडवाइस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करते हैं और उनसे एडवाइस लेकर ही ये आगे नाम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, एज फार एज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज कंसर्न, जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, ही ऑल्सो एंजॉयज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट जज की 65 ईयर्स होती है, पर यहाँ पे इनकी जो क्या कहते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट है वो 62 ईयर्स है। ठीक है, देन सैलरी जो है, इनकी सैलरी इट इज़ रेगुलेटेड बाय द हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, एंड जस्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, इवन अ हाई कोर्ट जज, once they have been appointed, their salaries, allowances, their emoluments etc., they cannot be diminished to their disadvantage. कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता। ठीक है ना, रिमूवल प्रोसेस जो है, रिमूवल प्रोसेस ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, अपॉइंटमेंट स्टेट में हो रहा है, बट इनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट के जज का रिमूवल प्रेसिडेंट करता है और उनके रिमूवल की प्रोसेस भी वही सेम प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट जज की है। ओके, हिज रिमूवल विल बी द रिमूवल प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 0 रोल टू प्ले इन टू इट, गवर्नर हैज़ 0 रोल टू प्ले इन टू इट।
ठीक है। और अगेन देर जो इम्पीचमेंट है इट कैन हैपन ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड प्रूवन इनकेपेसिटी। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगी, इन ऑर्डर टू impeach the judge, there has to be an investigation and inquiry under the Judges Inquiry Act, and the removal requires voting by at least 2/3 of the members present and voting, or rather as we call it special majority of the parliament. Okay, then moreover जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके साथ एक चीज़ अलग है, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इफ द प्रेसिडेंट सो थिंक्स, ही कैन ट्रांसफर अ जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर। देखिए किसी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, in case of any discrepancy or in case of his opinion that a judge should be transferred, he can transfer him from one court to another. और अगर आप किसी हाई कोर्ट जज को ट्रांसफर कर रहे हैं from one high court to another, then in such a scenario he is liable to receive a compensatory allowance for the duration of the time for which he is posted in another high court. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली भी देखेंगे इनको। सी सुप्रीम कोर्ट की हमने पढ़ी थी 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 5 ईयर का हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर का हाई कोर्ट एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अब ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये हाई कोर्ट जजेस के रिस्पेक्ट में नहीं होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी अ हाई कोर्ट जज यू नीड टू हैव ईदर बी हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, आपकी 10 साल की हाई कोर्ट जज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड ये ज़रूरी नहीं है एक ही कोर्ट में हो, या तो आप सक्सेशन में 2 कोर्ट्स में कर लीजिए या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में कर लीजिए, पर आपकी 10 ईयर की कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट दूसरा ऑप्शन क्या है, या आपने कोई ना कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इन दोनों में से कोई भी होगा देन यू आर एलिजिबल फॉर बीइंग अ हाई कोर्ट जज। देन ओके, इलैबोरेटिवली हो गया ये। ओथ ऑफ ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर कराते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की ओथ जो होती है वो गवर्नर एडमिनिस्टर कराते हैं, ठीक है। ओथ दोनों की सेम है, दे आर एसेंशियली taking oath or affirmation with respect to the same thing, to pay allegiance to the constitution, uphold the sovereignty and integrity of the nation, and perform the duties without any fear or fear or without any bias for that matter, ठीक है। देखिए प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी देख लेते हैं। रिटायर्ड जजेस का मैंने पहले भी बताया था, अगर वर्कलोड बढ़ जा रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की कंसेंट के साथ वी कैन अपॉइंट क्या कहते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में क्या होता है कि क्या कहते हैं हाई कोर्ट में भी एड हॉक बेसिस पे आप जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी आदमी को आपने एक बार को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया है, वो परमानेंट जज रह चुका है, तो उसको आप प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम प्लीडिंग इन एनी कोर्ट इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट और अनदर हाई कोर्ट। देखिए एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपनी पोस्ट से रिटायर हो गया है, तो आफ्टर रिटायरमेंट ही कैन नॉट प्लीड इन द हाई कोर्ट वेयर ही एक्टेड एज अ जज। दिस इज टू एंश्योर दैट ही इज इम्पार्शल एंड द जस्टिस इज ड्यूली सर्व्ड, ठीक है। कोई दूसरी हाई कोर्ट है वहाँ वो जाके प्रैक्टिस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनके रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं ना किसी लोअर कोर्ट में कर सकते हैं। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उसके मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं उनको, ठीक है ना। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका उनका मेंबर या फिर उसका चेयरमैन उनको अपॉइंट किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें अपॉइंट किया जा सकता है एंड सो ऑन। देखिए अगेन एज आई वाज टेलिंग बिफोर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लॉ कमीशन हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गई, आर्बिट्रेशन पैनल्स हो गए एट्सेट्रा, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं उसमें आप रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। पेंशन एंड अलाउंसेस, एज आई वाज टेलिंग बिफोर, इनकी जो पेंशन एंड अलाउंसेस हैं दे आर डेल्ट विद बाय द हाई कोर्ट जजेस एक्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। और इनको सबको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। मोरोवर इनकी सैलरी, एमोल्यूमेंट्स और पेंशन जो होते हैं दे आर चार्ज एक्सपेंडिचर। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके जो भी ऑफिसर्स हैं उनके सैलरी, एमोल्यूमेंट्स एटसेट्रा
देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के खुद की सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स, पेंशन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे चार्ज एक्सपेंडिचर के नेचर में आते हैं, ठीक है। चार्ज नेचर का मतलब हो जाता है कि द कंसर्न लेजिस्लेचर, चाहे वो हाई कोर्ट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्लियामेंट हो, दे कैन डिस्कस इट बट दे कैन नॉट पुट इट टू वोट, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा नॉन यूजुअल टॉपिक मैंने ऐड कर रखा है बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट कैन कम इन टू योर पेपर। देखिए, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे आर बोथ कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि यूजुअली सुपीरियर कोर्ट जो होती हैं, हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इन सब कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, विच मीन्स दैट द डिसीजंस दैट आर गिवन बाय देम आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी। इन सब के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको रखा जाता है एज अ रिकॉर्ड, ठीक है, फॉर परपेचुअल मेमोरी। देन दूसरा, देयर डिसीजंस कैन बी यूज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट, मतलब हाई कोर्ट का जो जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, इनको आप कोट कर सकते हैं एज अ लीगल प्रेसिडेंट। एंड फाइनली दे हैव अ पावर टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट, ये अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं किसी को, ठीक है। अब 129, आर्टिकल 129, इट डील्स विद द पावर ऑफ क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड सिमिलरली 215 और 215 डील्स विद द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और हम लोगों ने, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट बना रखा है 1971 में, विच डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। अब ये कंटेम्प्ट जो है प्राइमरली दो तरह का हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आई विल नॉट रियली गो इनटू द एसेंशियल डिटेल्स, उसके प्रोविजन जो है वो थोड़ा सा लॉयर्स का पर्सपेक्टिव हो जाता है, नॉट रियली समथिंग यू शुड बी डीलिंग विद। बट क्रिमिनल प्राइमरली आप समझ लीजिए, कोई भी स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, कोई इस तरह का ओपिनियन देना जो कोर्ट की गुडविल, कोर्ट की रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ पीपल, उसको रिड्यूस करता है। या फिर क्या कहते हैं, यू आर रेजिंग डाउट और रेजिंग बायस अगेंस्ट द जज, के भाई जज बायस्ड है एंड दे वुड नॉट बी एबल टू गिव एन इम्पार्शियल जजमेंट। या फिर आप कोई इस तरह के कमेंट्स कर रहे हो जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है द डिलीवरी ऑफ जस्टिस और फॉर दैट मैटर द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ओके। कैन जजेस कमिट कंटेम्प्ट, कोई रिटायर्ड जज है, अगर वो कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है या फिर कोई इस तरह का ओपिनियन दे रहा है जो कोर्ट को स्टैंडलाइज कर रहे हैं या फिर उसकी अथॉरिटी को लोअर डाउन कर रहे हैं, it can amount to a criminal contempt of the court, and even a retired judge can be in that scenario punished by the courts for contempt of the court under the contempt of courts act, ठीक है। जुडिशरी का क्रिटिसिज्म जो है, मतलब एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है, दैट इज अलाउड, क्योंकि वो आपके आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है, ठीक है। बट इफ यू आर क्रॉसिंग द लाइन और इफ यू आर मलाइनिंग द होल इंस्टीट्यूशन, then that would be categorized as a contempt of the court, or it does not matter whether you have been a retired judge of the court, you would still be considered accused or guilty in the eyes of the law, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो कंसेप्ट हम और समझ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये जो हायर कोर्ट्स होती है ना, दे हैव अ पावर टू measure, to judge or to check the veracity or legality of any legislative enactment, especially with respect to the provisions of part 3 of the constitution। ये किसी legislative enactment की जब constitutionality को check करते हैं कि देखिए क्या वो जो क्या कहते हैं legislative body थी, उसने जो लॉ बनाया, was it empowered, did it have the power to make that law, या फिर जो भी लॉ है, इज इट इन सिंक, इज इट इन लाइन विद द कमांड्स और द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो दे आर इन ट्यून विद द कमांड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के जो पावर है हायर कोर्ट्स की, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब आर्टिकल 13 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट प्राइमरली डील्स विद द जुडिशियल रिव्यू ऑफ क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस on the periphery of part 3 or with respect to the violation of fundamental rights, okay। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, देखिए अब जुडिशियल एक्टिविज्म बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है व्हेन द हायर कोर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द एग्जीक्यूटिव is not performing its functions diligently, then at times what they do is, while interpreting the laws or while laying down the guidelines, they somehow sometimes
lay down certain rules and regulations which essentially are in nature or in domain of executive. देखिए आप मान लीजिए जैसे किसी केस पे अगर आपकी हाई कोर्ट है वो डिसीजन दे रही है और इट थिंक्स दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स रोल प्रॉपरली, तो जो अपना डिसीजन देगी उसमें कोई इंटरिम मेजर दे सकती है. उस इंटरिम मेजर में ये बोल सकती है, एग्जीक्यूटिव को कमांड कर सकती है कि भाई आप इस तरह के एक्शंस लीजिए. अब ये एक्शंस लेना जो है ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है, पर यहाँ जुडिशरी वो कमांड दे रही है. सो बेसिकली इट्स ट्राइंग टू परफॉर्म द फंक्शंस रिजर्व फॉर द क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव. उस सिचुएशन में ऑल इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेक एन एक्टिविस्टिक अप्रोच. एक्टिविस्ट वाली अप्रोच जुडिशरी है अडॉप्ट कर रही है, एंड इट इज़ ट्राइंग टू इंश्योर दैट द एंड्स ऑफ जस्टिस आर मेट. इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म से डिनोट करते हैं. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हो गया, उसमें जो कोर्ट अपनी रूलिंग दे रही है, या फिर सोशल जस्टिस या फिर सोशल वेलफेयर रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है उसमें कोर्ट कोई रूलिंग दे रही है विच इज़ समथिंग इट शुड नॉट डू इन केस इट इज़ एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. तो वो सारा का सारा जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है. उसी से कनेक्टेड एक और कंसेप्ट होता है जुडिशियल ओवर रीच. देखिए कभी कभी कोर्ट जो है इट फ्लोज एंड एट टाइम्स इट एक्ट्स मच बियॉन्ड इट्स डिफाइंड टेरिटरी. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि द लिमिट्स और द स्फेयर ऑफ वर्क ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इट इज़ क्लियरली डेलिनेटेड. तो कभी ऐसा हो जाता है जब जुडिशरी जरूरत से ज़्यादा आगे निकल जाती है, देन दैट कम्स अंडर द रेल्म ऑफ जुडिशियल ओवर रीच, and it is considered as a criticism of the judiciary. It is trying to overdo its field of work. ठीक है. अब एक्टिविज्म जो है इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए. इट इज़ गुड फॉर द हायर कोर्ट्स टू बी एक्टिविस्टिक इन देयर डेली फंक्शनिंग बिकॉज इट इज़ सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इट इज़ बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स इन टू द नेशन, बट दे मस्ट नॉट बाईपास द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स. देखिए देयर इज़ अ रीजन वाई आर फाउंडिंग फादर्स हैव क्लियरली डेलिनेटेड दीज फंक्शंस. तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ले डाउन करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दे शुड नॉट बी इजीली बाईपास्ड एट देयर स्वीट विल. द कोर्ट शुड मेजर कि भाई इनके जो डिसीजंस होंगे इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये क्या क्या प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं. देन ओनली इट शुड गो अहेड एंड टेक डिसीजंस. ओके, PYQ देखते हैं फटाफट. विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल? आर्टिकल 32 ऑफ कोर्स, मैं आपको पढ़ाया भी था पीछे ये. देन अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन सीक advice from the Supreme Court? Article 143 is the article under which the president can seek the advice of the Supreme Court. Then which writ is issued for unlawful detention, habeas corpus, or to have the body of it is the writ which is issued. Then who appoints the judges of Supreme Court? President, of course. That should be the gist of the topics with respect to judiciary. I would make a PDF out of it and I'll put it on my channel. तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तब प्लीज़ इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ डू मेक श्योर यू रिवाइज दिस PDF थरोली. ओके.